Hello student, today we are going to discuss the 10 MCQs on the national income. 10 MCQs on national income. Welcome to the Mans Chandigarh IAS Academy where we are going to start this new series of the prelims MCQ. Prelims MCQ on the important topics of your prelims examination or the state PCS or the UPSC. We are going to discuss the 10 important questions on the every topics. This series will be continued with the other subject also. So let's start with the today's topic. The topic is the national income. So question number one, in an economy, the national income of the economy is consumption, investment, government expenditure, and total exports and total imports respectively. How it can be represented? नेशनल इनकम किसी भी कंट्री का किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है? जब भी हम नेशनल इनकम की बात करते हैं किसी भी कंट्री के, इट विल बी द कंजप्शन plus it's the investment plus government expenditure and it's the plus export minus import means the net exports government के कितना रहा है. So this is the formula for calculating the national income and this is also known as the expenditure method. इसको बोला जाता है expenditure method to calculate national income. Expenditure method to calculate national income. So answer of this question will be the C. Y is equal to C plus I plus G plus net export. Let's move to the question number 2. Question number 2 is here. As the gross national product of a nation increase, the share of the tertiary sector in the total GNP. ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट अगर इंक्रीज होगा, इफ देयर इंक्रीज इन द ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट्स, क्या ये नेसेसिटी है कि टर्सरी सेक्टर इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या रिमेन सेम रहेगा? वी डोंट नो दैट. हमें नहीं पता ही कि वो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कि जो ग्रोथ आ रही है, ग्रोथ जीएनपी आ रहा है, ग्रोस नेशनल इनकम आ रही है या ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट आ रहा है, डेट इज बिकॉज ऑफ टर्सरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर. वी डोंट नो क्योंकि स्टेटमेंट में कहीं गिवन नहीं है किस सेक्टर से आ रहा है. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी नन ऑफ द अबव. तो आपके पीसीएस एग्जामिनेशन में, यूपीएससी एग्जामिनेशन इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि जब तक एब्सोल्यूट स्टेटमेंट गिवन है आप उसको रोम मार्क करेंगे इन द मोस्ट ऑफ द केसेस, क्योंकि इकोनॉमी में शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के इफेक्ट्स अलग अलग होते हैं. किस रीजन की वजह से हाई ग्रोथ आ रही है, वी हैव टू नो दैट. अगर स्टेटमेंट में नहीं लिखा तो हम उसको मार्क नहीं करेंगे. Let's move to the question number 3. So the answer of this question is the none of the above. Let's move to the question number 3. Before going to the questions, at the Mans Chandigarh IAS Academy, we are launching a new general studies batch, both for the PCS and the UPSC. For the PCS, we are targeting the Haryana Civil Service, Himachal Pradesh Academic Service (HAS), and we are also targeting the Punjab Public Service (PPSC) को target कर रहे हैं. So these are the main state services we are focusing on, and we are also focusing on the Union Public Service Commission, the Central UPSC. तो ये जो नए पे स्टार्ट होंगे वो 2nd of June, 9 of June एंड 16 of June से स्टार्ट हो रहे हैं. तो यू कैन ज्वाइन एनी ऑफ दीज बैच टू क्वालिफाई योर एग्जामिनेशन. वी विल सपोर्ट यू फ्रॉम द प्रीलिम्स, मेंस एंड द इंटरव्यू जब तक आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो जाता. व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ इट? ऑल द दिल्ली फैकल्टी, सारी की सारी दिल्ली फैकल्टीज जो हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में हैं, वो आपको आगे यहाँ पे पढ़ाएंगे. वी आर हैविंग द टॉप मेंटोर्स. वी आर हैविंग टॉप मेंटर्स जो आपको असिस्ट करेंगे आपकी प्रिपरेशन लेवल में. करंट अफेयर का कवरेज कराया जाएगा, एमसीक्यू टेस्ट सीरीज का कवरेज कराया जाएगा, मेन टेस्ट सीरीज का कवरेज कराया जाएगा, सी सेट पे फोकस किया जाएगा. ये सारे के सारे फीचर्स है. यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दीज नंबर्स एंड यू कैन ज्वाइन द मार्च चंडीगढ़ आईएएस अकेडमी फॉर योर ब्राइट फ्यूचर एंड टू क्रैक द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन ऑफ द स्टेट्स एज वेल द सेंटर. Let's move to the next question. Next question, match the list one with the list 2, the correct answer using the codes given below. Number 1 is boom, number 2 is recession, number 3 is depression, and the number 4 is recovery. Number 3 is depression and number 4 is recovery. We have to match these one. आजकल यूपीएससी या बाकी स्टेट पीसीएस मैच द फॉलोइंग्स में काफी क्वेश्चन पूछ रहे हैं. इवन द यूपीएससी इंट्रोड्यूस द 3 पेयर्स मैचिंग कॉलम. 3 पेयर्स कॉलम वाले क्वेश्चन भी यूपीएससी ने बनाना शुरू कर दिया. लेट्स मैच दिस. बूम. बूम इज द बिजनेस एक्टिविटी एट द हाई लेवल. It's a high level with increasing income, output and employment. So the first is correct. A का 1 है तो we can eliminate the option number C and option number D को हम eliminate कर सकते हैं ताकि मेरा accuracy बढ़ गया 50% क्वेश्चन करने का. Now let's move to recession. Gradual fall of income, output and employment with business activity in a low gear. Yes, recession is correct. Even through the option हमें पता लग जा रहा है कि B दोनों में 2 ही है तो B is correct. Now let's see. Depression, unprecedented level of the underemployment and unemployment, drastic fall in the income. That's a
feature of depressions, and the recovery steady rise in the general level of prices. Then the C and 3, A, B, A1, B2, C3, D4. So the answer of this question is A. तो इस तरीके से आपको मैच करने होंगे. इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस टर्म, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ boom, what's the meaning of recession, what's the meaning of depression, and what's the meaning of recovery. Let's move to the next question. Since 1980, the share of tertiary sector in the total GDP has increased. It's shown an increasing trend. अगर आप देखोगे, India is a service-led economy. India is a service-led economy. More than 45% कंट्रीब्यूशन रहता है हमारे सर्विस सेक्टर का इन द जीडीपी ग्रोथ. मोर देन 45% कंट्रीब्यूशन रहता है हमारे सर्विस सेक्टर का इन द जीडीपी ग्रोथ. तो इट्स शोन एन इंक्रीजिंग ट्रेंड. तो ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं. ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन आपको स्टेट पीसीएस में, यूपीएससी में पूछे जाते हैं मल्टीपल टाइप के. नेक्स्ट आते हैं, कंज्यूमर इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम. अ कंज्यूमर इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम. किसी कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम में कब कहा जाएगा? किसी भी कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम में तब कहा जाता है व्हेन ही इज एबल टू फुलफिल हिज नीड. जो उसका इनकम लेवल है उससे क्या अपना वो नीड फुलफिल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है. अगर वो अपने इनकम लेवल से, if he from the income level he is fulfilling his need, आपकी सारी की सारी नीड हो फुल हो जा रही हैं आपकी इनकम से, then we can say that the consumer is in equilibrium. Let's see the option. He is able to fulfill his needs with a given level of income. So this is the correct option. He is able to live in full comforts with a given level of comforts. नहीं, नीड की बात होती है. कंफर्ट तो किसी का पूरा नहीं हो सकता. We are focusing on the need. He can fulfill his need without consumption. Without consumption you cannot fulfill your needs. He is able to locate new source of income. No. So answer of this question is A. A consumer is said to be in equilibrium if he is able to fulfill his needs with a given level of income. Now let's move to the next question. Next question. Before going to the next question, we are launching a new GS Foundation courses. GS Foundation courses for the state PCS and the UPSC. You can join our course. This is starting from the 2nd, 9th and the 16th of June 2025. We are targeting the year 2026 both for the state PCS and the UPSC. For Haryana PCS, for the Himachal Pradesh PCS, for the Punjab PCS, for the Rajasthan PCS, you can join our batches from the 2nd, 9th and 16th. The main features of the batch, all the Delhi faculty will teach in the Chandigarh. अभी आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है. सारे के सारे दिल्ली फैकल्टी जो टॉप क्लास फैकल्टी हैं वो आपको आके यहाँ पे पढ़ाएंगे. वी आर कवरिंग द कंप्लीट जी सिलेबस, सी सेट, करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज. आपको हर चीज कवर कराई जाएगी इन बैचेज के अंदर. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमी ले ग्रेटर एम्फेसिस ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू. किसके पॉइंट ऑफ व्यू पे सप्लाई साइड ग्रेटर एम्फेसिस करेगा? ग्रेटर एम्फेसिस ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू सप्लाई साइड. सप्लाई साइड का मेन, हु इज द मेन person or who has the main industry behind the supply sides. The supply side जो भी हो प्रोड्यूसर, क्योंकि प्रोड्यूसर ही प्रोडक्शन करेंगे. अगर प्रोडक्शन में ही अप एंड डाउन है तो सप्लाई साइड इफेक्ट होगी. तो द प्रोड्यूसर, greater emphasis on the point of producer. Supply sides economy में greater emphasis on the point of producer. So the answer of this question is A. Let's move to the next question. Question number 7 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 इज अबाउट द इकोनॉमिक सर्वे. आपको पता है कि हर साल इकोनॉमिक सर्वे गवर्नमेंट रिलीज करती है. फरवरी में गवर्नमेंट रिलीज करती है हर साल इकोनॉमिक सर्वे. इकोनॉमिक सर्वे इन इंडिया इज पब्लिश्ड ऑफिशियली बाय, इट्स ऑफिशियली पब्लिश्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इकोनॉमिक सर्वे हर साल रिलीज करता है. बजट रिलीज किया जाता है, इकोनॉमिक सर्वे रिलीज किया जाता है. इकोनॉमिक सर्वे लास्ट ईयर में गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, गवर्नमेंट के इकोनॉमिक डाटा का लास्ट ईयर के डेटा का रहता है. बजट नेक्स्ट ईयर के लिए लॉन्च किया जाता है. बजट नेक्स्ट ईयर के लिए लॉन्च किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 7 आंसर इज सी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 इज अबाउट द मेन रीजन फॉर लो ग्रोथ. मेन रीजन फॉर लो ग्रोथ रेट इन इंडिया. इंडिया में रिसोर्सेज भी हैं, सेविंग भी अच्छी खासी करते हैं, उसके बाद भी क्यों हम लो ग्रोथ है हमारे पास डिस्पाइट ऑफ द हाई रेट ऑफ सेविंग एंड द कैपिटल फॉर्मेशन. किसी भी कंट्री में अगर रिसोर्सेज हैं, इफ दे आर द रिसोर्सेज इन द कंट्री, सेविंग रेट ज़्यादा है किसी भी कंट्री में, उसके बावजूद ग्रोथ लो होने का एक ही रीजन होता है कि जो हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो है, हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो मीन्स कि आपको कितना पैसा लग रहा है टू प्रोड्यूस एन आउटपुट.
आप कितना स्पेंड कर रहे हैं टू प्रोड्यूस एन आउटपुट। अगर आपका कैपिटल आउटपुट रेशियो बहुत ज़्यादा है, इन दैट केस देयर विल बी द लो ग्रोथ रेट, क्योंकि आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो दिस इज नोन एज द कैपिटल आउटपुट रेशियो, कैपिटल आउटपुट रेशियो बोलते हैं। तो दैट्स अ हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो। हर एक कंट्री, एवरी कंट्री वांट अ लो कैपिटल आउटपुट रेशियो। हर कोई कंट्री लो कैपिटल आउटपुट रेशियो पे जाना चाहता है। लाइक चाइना इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द लो कैपिटल आउटपुट रेशियो, where they're competing with the every international market with their products quality as well as the prices। इसके साथ साथ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, क्या होता है आप उसका मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज अबाउट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच। कौन कौन से पेयर्स सही तरीके से मैच्ड है यहाँ पे। रैशनिंग, फिस्कल कंट्रोल गलत। रैशनिंग होगा तो फिस्कल कंट्रोल हो ही नहीं सकता है। कैश रिजर्व रेशियो सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के नहीं होता, ओवरऑल क्रेडिट कंट्रोल के लिए होता है। लाइसेंसिंग फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव, लाइसेंसिंग फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव कंट्रोल, यस लाइसेंसिंग कॉम्प्रिहेंसिव कंट्रोल के लिए किया जाता है। सी स्टेटमेंट इज राइट हियर, सी इज राइट। इंपोर्ट कोटा नॉट फिजिकल कंट्रोल, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। आंसर इज सी हियर, क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अ डिफ्लेटर। अ डिफ्लेटर इज द टेक्निक। डिफ्लेटर किसके लिए यूज होता है, प्राइसिंग लेवल के लिए यूज होता है। डिफ्लेटर इज मेनली यूज फॉर द प्राइसिंग लेवल। अगर मैं आपको जीडीपी डिफ्लेटर की बात बताऊं, अगर हम जीडीपी डिफ्लेटर की बात करते हैं, इन द केस ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर इट इज द नॉमिनल जीडीपी divided by real GDP and into 100, this will give us the inflation। इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कितना है, एंड द जीडीपी डिफ्लेटर इज द बेस्ट मेथड टू कैलकुलेट द इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी, बिकॉज इट्स कवर द मल्टीपल एरिया, इट्स कवर ऑल द इकोनॉमिक प्रोडक्शन एरिया जहां जहां से इन्फ्लेशन के इंक्रीज होने के चांसेस है। तो द आंसर ऑफ दिस question is adjusting for changing in the prices level, adjusting for changing in the prices level। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए हियर। तो इस तरीके के वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आप मां चंडीगढ़ आईएएस एकेडमी के साथ, where we are going to come up with the new video with the new topics as well as all the kind of the MCQ that can be discussed here। Thank you।